Hello everyone, welcome to today's video. And in this lesson, we are going to learn about Rabindranath Tagore's famous essay True Worship. So, this chapter beautifully explains what real worship means and how it is connected with human service and love. So, let's understand the main ideas and moral of this inspiring work. But before we begin, let's know a little about the writer. So, Rabindranath Tagore was one of India's greatest poets, philosophers, and thinkers. He was the first Indian to win the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book Gitanjali. Tagore believed that God can be found not only in temples or rituals but also in helping others and doing good deeds. So whole biography of Rabindranath Tagore is in my YouTube channel, so you can visit and can take complete knowledge about Rabindranath Tagore. So now we come back our topic, um, True Worship by Rabindranath Tagore. So let's begin the summary of True Worship. In True Worship, Tagore says that real devotion is not shown by words or prayers only, but by our actions of kindness and service. He tells a beautiful story to explain this idea. तो दोस्तों टैगोर कहते हैं कि ट्रू वर्शिप सिर्फ प्रेयर करना, मंत्र बोलना या पूजा करना नहीं होता। रियल वर्शिप तब होती है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, उनका दुख दूर करते हैं और उनके लिए काइंडनेस दिखाते हैं। तो इस ऐसे में टैगोर जी ने एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को समझाया है, जो कि मैंने आपको एक समरी के रूप में बताई है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता। So once there was a man who spent all time in worship. He used to sit in front of God's idol and pray the whole day. He never helped anyone, thinking that true devotion means only prayer and meditation. One day, a poor man came to his door asking for food and help. But the worshipper refused, saying, I cannot stop my worship. I am serving God. Later, the same night, he had a vision of God. So, इस स्टोरी में बताया गया है कि एक बार एक आदमी था जो दिन भर भगवान की पूजा करता था। वो सोचता था कि सिर्फ आइडल या भगवान के सामने बैठकर प्रेयर करना ही भक्ति है। एक दिन एक गरीब आदमी उसके घर आया, भूखा था, मदद मांग रहा था, लेकिन वो पूजा कर रहा था और पूजा करते समय उसने उससे कहा, अभी मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। रात को उस आदमी ने एक सपना देखा जिसमें भगवान उससे कहते हैं, God said to him, I came to your door in the form of hungry man, but you did not help me. How can you worship me in the temple when you ignore me outside? तो भगवान उससे कहते हैं, मैं खुद तेरे दरवाजे पर भूखे आदमी के रूप में आया था, लेकिन तूने मुझे भगा दिया। जब तू मेरे अंदर के रूप को ही नहीं पहचान सका तो तेरी पूजा का क्या अर्थ है? Through this story, Tagore teaches that God lives in every human being, especially in the poor and helpless, so serving people in the highest form of worship. He also tells that true religion does not lie in rituals, temples or offering, but in love, compassion and humanity. तो ये स्टोरी हमें बताती है कि रियल वर्शिप जो है वो टेम्पल्स में नहीं होती, इट इज़ इन सर्विंग ह्यूमैनिटी। वो किस में होती है? ह्यूमैनिटी में होती है, मानवता में होती है, दूसरों की मदद करने में होती है, दूसरों से प्यार करने में होती है, काइंडनेस दिखाने में होती है। सिर्फ मंदिर में बैठकर या घर में भगवान के सामने पूजा करना ट्रू वर्शिप या असली भक्ति नहीं होती है। तो भगवान हमेशा उन्हीं के पास में रहते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं और सेल्फलेस होते हैं। भगवान हमेशा उन्हीं के पास आते हैं। अब हम देखेंगे द मैसेज ऑफ दिस ऐसे। अब इस ऐसे का क्या मैसेज है? तो इस ऐसे का मैसेज है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। व्हेन वी हेल्प द पुअर, रिस्पेक्ट अदर्स एंड स्प्रेड लव,
we are truly worshipping God. Tagore reminds us that real spirituality lies in being kind and selfless. It's not about outer show, it's about inner purity and actions. तो हमें इस ऐसे से ये मैसेज मिलता है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मतलब अगर हम किसी इंसान की मदद करते हैं, चाहे वो गरीब हो, भूखा हो या दुखी हो, तो हम असली में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो ट्रू वर्शिप दिल से होती है, दिखावे से नहीं होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं वही सच्ची भक्ति होती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो कि हमें याद रखनी है, और ये लाइन हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट कोट्स के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाए। हो सकता है ये लाइंस लिखकर राइटर का नेम पूछ लें, हो सकता है ये लाइंस लिखकर चैप्टर का नेम पूछ लें। मीन्स बहुत सारे वेज हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं। ट्रू वर्शिप लाइज इन सर्विस नॉट इन रिचुअल्स, गॉड लाइव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये इम्पोर्टेंट कोट्स हैं इस चैप्टर के, किसके, ट्रू वर्शिप के। तो यहाँ पर मैंने इसकी समरी ही ली है। तो ट्रू वर्शिप जो है वो क्या है, हमें क्या बताती है? वर्शिप हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता है मानव सेवा, हेल्पिंग अदर्स, स्प्रेडिंग लव एंड काइंडनेस, दैट्स द रियल प्रेयर। सो दोस्तों, अगर आपके एक्सप्लेनेशन आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और भी MP-TET इंग्लिश के चैप्टर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।